परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। आपने स्नातक व परास्नातक की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय वरीयान सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। आपने भक्ति, इट्स कल्चरल इम्प्लीकेशंस फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू अर्ली मिडीवल एजेस विषय पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पीएचडी उपाधि प्राप्त किया है। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जूनियर व सीनियर रिसर्च फेलोशिप का अर्जन व अनंतर रिसर्च एसोसिएट के रूप में चुने गए हैं। आपको लगभग 18 वर्षों का शोध, अध्यापन व प्रशासनिक कार्यानुभव है। आप 65 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का संयोजन एवं समन्वयन कर चुके हैं तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में विशिष्ट वक्ता, मुख्य वक्ता, बीज वक्ता, सत्र अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रह चुके हैं। आपके 6 पुस्तकें एवं 37 शोध पत्र आलेखन प्रकाशित हो चुके हैं। आपके प्रमुख प्रकाशित पुस्तकों में से इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, विजयम प्रोबिंग इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, नाथ, पंथ और भक्ति आंदोलन इत्यादि। आपने अनेक कार्यशालाओं, व्याख्यान श्रृंखलाओं एवं संवाद पत्रों का आयोजन व समन्वयन किया है। आपने प्रसार भारती, दूरदर्शन गोरखपुर एवं लखनऊ के साथ 50 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की सोसाइटी के 5 वर्ष एवं शोध परामर्श समिति के 3 वर्ष हेतु नामित सदस्य हैं। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इतिहास हेतु गठित लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क समिति के सदस्य रह चुके हैं। आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एवं सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय गैंगटॉक के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, एनसीईआरटी, सीबीएसई, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार इत्यादि की विविध समितियों एवं उप समितियों के सदस्य हैं। संप्रति आप निदेशक शोध एवं प्रशासन, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में वर्ष 2018 से सेवारत है। With this brief introduction, may I now request Dr. Om G. Upadhyay to please speak on today's topic, विसंगतियां और भारतीय इतिहास लेखन में पुनर्लेखन की आवश्यकता, anomalies and the need for rewriting in Indian historiography. Thank you. Over to you, sir. Thank you, goddess of knowledge and music, Ma Saraswati, Ma Kamakhya, the learned scholars, participants, very dynamic and very hardworking person, my friend Dr. Subhajit ji, who has been the key person for this entire academic endeavor. Respected Dr. Sri Bhavadda, Bavaranjanda, Dr. Dilip Fukanji, Dr. Rita Devi Chaudhary ji, Dr. Jyoti Sharma, Dr. Manoshi Niyogi, and other participants. Namaskar. In fact, at the outset, I would like to thank Dr. Subhajit ji for this academic endeavor, what he has started for last few days, few months, I should say, and giving me this opportunity amidst the stalwarts of the subjects. So I am thankful to you, sir. Let me start with a sloka of Yajurveda. Sa prathama Sanskriti Vishwara. That is, we Indians are the conveyors or bearers of the oldest culture in the world. Rigveda instructs us, Indram Vardhanto Apturah Krinavanto Vishwamaryam. That is, be active, spread the message of greatness of God, do work for prosperity,
and make the entire world Arya. That is great. With this background, it is, I think, needless to say that we have been taught history with the colonizers' point of view. The history of inferior people being conquered, fighting with each other, cruel, barbaric, and whatnot. In fact, origin of Bharatiya civilization and history shouldn't be defined by wars. It shouldn't be defined by exploitations and poor people and all that. In contrary, India or Indians were tech savvy people making scientific and financial economic contributions to the world, advancing some other things before anybody else in the world, exploring and exporting knowledge in the entire world. Why these things were never taught about Bharat? They were never talked about Bharat. This is the question. In fact, Britishers and the brain children of Britishers in last 7 decades, they put all their efforts to inculcate sort of inferiority complex in us, in Indians, by distorting our history and culture. And that is the reason that why, unlike Chinese, German or Japanese people, we Indians are not clear about what we are. So, इस जो पृष्ठभूमि है, in fact, I am instructed by the organizers that I should speak bilingual, though it's a tough task for me. दोनों भाषाएं एक साथ बोलना, किसी भी एक भाषा में रहना ज्यादा ठीक होता है, लेकिन अच्छा है, इसी बहाने कम से कम हम लोग हिंदी में भी बातचीत करेंगे. अब इस बैकग्राउंड पे जब हम देखते हैं, तो एक बार समझना चाहिए कि ये क्यों, जो ये इतनी विसंगतियां आई, इसके पीछे कारण क्या रहा, एंड व्हाट वाज द प्रोसीजर, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द सोल्यूशन, or in which direction we should go or we are going, and what is our ultimate objective or goal. So these are the questions जिस पे मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं. इतिहास होता क्या है, इतिहास के लेखन में, भारतीय इतिहास लेखन में विसंगतियां आई तो क्यों आई, उसके पीछे पूरा मानस क्या था, पूरी मानसिकता क्या थी, उसको हम ठीक कैसे करें, उसकी दिशा में कहां तक बढ़े हैं, कहां तक हमें जाना है. ये 3-4 मुख्य बातें, मेरी पूरी बातचीत जो 50 मिनट का समय मुझे निर्धारित है, उस पे मैं I'll focus on these aspects only. In fact, इतिहास एक सतत प्रवाह है, सतत प्रक्रिया. और एक परिभाषा, एक डेफिनेशन इतिहास की जो मुझे बहुत आकर्षित करती रही है, आई थिंक यू ऑल माइट बी अवेयर विद दैट डेफिनेशन, वो ये कि ये इतिहास जो है, इट इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट. यह अतीत और वर्तमान के मध्य एक अंतहीन संवाद है. अंतहीन है, इट्स एन अनएंडिंग डायलॉग. It means the task will never be, accomplished or finished. At any point of time, we cannot say that our job or our object, we have achieved our goal, we have achieved our objective. We cannot say this. ये काम ऐसा है जो हमेशा सतत चलते रहने वाला है, कभी ना पूरा होने वाला काम है. यानी इतिहास में कोई there is no eternal accomplishment, there is no कोई शाश्वत पूर्णता नहीं है उसमें. हम किसी शाश्वत पूर्णता की बात नहीं कर सकते. It means that at any point of time, it is like an interim report, which can be changed as new facts will come, as new researches will come. So, कभी भी शाश्वत पूर्णता की बात नहीं कर सकते कि अब ये कंप्लीट हो गया काम. जैसे ही नए तथ्य आएंगे, वो इंटरिम रिपोर्ट की तरह से है, उसके मायने, उसके अभिप्राय बदल जाएंगे, उसकी बहुत सारी स्थापनाएं, बहुत सारे whatever theories we have propounded earlier, those may be changed at any point of time.
इसीलिए ऑस्कर वाइल्ड जैसा एक विद्वान है जो ये कहता है कि इतिहास का निर्माण कोई भी कर सकता है, लेकिन इतिहास लेखन कोई महान व्यक्ति ही करता है। इतिहास लेखन कोई महान व्यक्ति ही कर पाता है। अब जो ये भारतीय इतिहास लेखन है, इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है, इसका जो पूरा बैकग्राउंड है, और कैसे वेस्टर्न जो मेथोडोलॉजी है, वेस्टर्न जो थॉट है, वो हमारे ऊपर हावी हो गया। वी स्टार्टेड सीइंग आवरसेल्फ with their eyes or with their specs, how it became। अभी मैं इस पे थोड़ी चर्चा आपसे करूंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि हमने खुद को उनके चश्मे से देखना शुरू कर दिया, उनकी आंखों से देखना शुरू कर दिया, कैसे वो हमारे मानस पे इतने हावी हो गए। इस जब हम बैकग्राउंड को समझेंगे, तब हम सही दिशा में समझ पाएंगे कि वास्तव में समस्या है कहां और उसका निदान क्या है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उन्होंने केवल हमारे इतिहास को ही नहीं, पूरी क्रोनोलॉजी को भी बहुत हद तक अफेक्ट किया, बहुत हद तक प्रभावित किया। द हिस्ट्री विच हैज बीन टॉट एंड वी always thought that it is the true history of our nation, which have been taught in the schools, colleges and universities. There's a lot of misconceptions, wrong concoctions, prejudices and paradoxes in them. Plenty of them. I'd come on a few examples. पहले तो मैं एक दोनों के बीच जो इंडियन थॉट है, भारतीय फिलोसॉफी है, इसको लेके और जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसके बीच अंतर कहां है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। I'd focus on just 3 aspects. What Western academia or Western philosophy thinks about human being as an entity, what they think about the society, and what they think about the ultimate goal of our life. ये 3 मुद्दों पे मैं फोकस करूंगा कि मनुष्य के बीच, मनुष्य को लेके भारतीय परंपरा का विमर्श क्या है, वो क्या सोचती है, और पाश्चात्य जगत क्या सोचता है। समुदाय को या समाज को लेके हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, और हमारे जो हमारा अंतिम उद्देश्य है उसको लेके दोनों जगह क्या सोच है। और जब ये हम ध्यान से समझ लेंगे या इसकी समझ हमारी बनेगी, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों ये डिस्टॉर्शंस आए इतिहास में और ठीक करने का तरीका क्या है। भारतीय और पाश्चात्य जगत में मानव और मानव स्वभाव, ये कैसे इसका विमर्श किया गया है। जो वेस्टर्न एकेडमिया है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, वहां माना जाता है कि मनुष्य का जन्म पाप से हुआ है। इटली का जो विद्वान है मैकियावेली, वो मानता है कि मनुष्य मूलतः, बेसिकली, ओरिजिनली जो मनुष्य है वो कृतघ्न है, पापी है, कपटी है, धूर्त है और लालची है, और वह किसी का प्रेम व सहयोग तभी करता है मनुष्य जब इससे उसे लाभ पहुंचता है। मतलब अगर उसे लाभ ना पहुंचे तो किसी का सहयोग नहीं कर सकता। जो ब्रिटिश विद्वान है हॉब्स, वो भी कहता है कि मनुष्य क्रूर है, डिस्ट्रॉयर है, मूलतः इज ए क्रूएल एंड डिस्ट्रॉयर, नीच है, दुष्ट है, सेल्फ सेंटर्ड है। फ्रायड, डार्विन और मार्क्स, वो भी लगभग यही बात स्वीकार करते हैं, यही बात मानते हैं। इसके विपरीत जाइए, कॉन्ट्ररी टू दिस, जब हम इंडियन फिलोसॉफी देखते हैं, इंडियन एकेडमिया में जाते हैं, भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन परंपरा में क्या सोचा गया मनुष्य के बारे में, वहां एकदम विपरीत चीज दिखती है। वहां दिखता है कि हम परम सत्ता के अंश हैं, हम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस, हम उस दैवीय अंश हैं हम, और इसलिए हमारी श्रेष्ठता पहले दिन से ही हमको एक श्रेष्ठ देव सत्ता का अंश माना गया। अब अगले स्तर पे पहुंचिए, हम समाज के बारे में क्या सोचते हैं, समाज को लेकर, समष्टि को लेकर हमारी अवधारणा क्या है, कम्युनिटी को लेकर हमारी अवधारणा क्या है। हमने, हमारी मनीषा ने ये उद्घोष किया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। This is mine, this is yours, this comes from misery thoughts. The entire world is a family.
दिस एंटायर यूनिवर्स इज अ फैमिली। हमने ये उद्घोष किया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। हमने कभी वी नेवर टॉक्ड अबाउट वन क्रीड, वन कास्ट, वन कम्युनिटी, वन रीजन, वन नेशन, वी नेवर टॉक्ड अबाउट दैट। हमने जब कल्पना की तो हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने जब संकल्पना की तो हमने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। We are not limited to any caste, any creed, any religion, any reason. We are not limited to, we are not constricted to that. In contrary to that, जब वहां ये बात की गई तो वहां फला भाईजान और क्रिश्चियन ब्रदरहुड, मुस्लिम भाईचारा, इससे आगे तक बात बढ़ती नहीं, इससे आगे बात बढ़ी नहीं। कहीं भी विश्व बंधुत्व का किसी भी दुनिया के किसी फिलॉसफी को उठा के देख लीजिए आप, भारत के अलावा। मैं जानना चाहूंगा अगर आप मेरे बहुत अल्प ज्ञान को थोड़ा और संबल देंगे कि कहीं ऐसी बात और की गई जो मूल उनकी फिलॉसफी है उसमें, हमसे नकल करके बाद में उन्होंने कर लिया हो अलग बात है, लेकिन मूल दर्शन में, मूल चिंतन में कहीं ऐसी बात आई हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। तीसरी बात, जो जीवन का उद्देश्य है वो भारतीय दर्शन में मनुष्य के जीवन का अल्टीमेट गोल बताया गया, मोक्ष, लिबरेशन। जबकि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, फॉर देम द मटेरियल अचीवमेंट वाज द अल्टीमेट गोल। जो भौतिक सुख है उसकी प्राप्ति ही अल्टीमेट गोल थी। अब इतिहास और इतिहास लेखन की भारतीय अवधारणा क्या है, उन्होंने जो ब्रैकेटेड अपनी डेफिनेशन दी उसमें हम बहुत फिट नहीं बैठे, और उनको तो एक बहाना चाहिए था निगेट करने का। अभी मैं बताऊंगा क्यों निगेट करना चाहते थे। इतिहास का जो चिंतन है भारतीयों की वास्तव में बहुत विशिष्ट देन है, और भारत में इतिहास लेखन की परंपरा तब से है जब दुनिया की दूसरी बहुत सारी सभ्यताएं अभी अपनी शैशवावस्था में थी, अभी वो जंगली जीवन बिता रही थी, तब हम वैदिक ऋचाओं का उद्घोष यहां कर रहे थे। अथर्ववेद में इतिहास की अवधारणा पर बहुत व्यापक चर्चा है, बहुत विशद चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद में इसको 5वां वेद कहा गया। वेद का अर्थ ही होता है जानना, ज्ञान। ज्ञान की एक बड़ी शाखा के रूप में, एक बड़े ब्रांच के रूप में, एज ए वेरी प्रोमिनेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इतिहास, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि राजा को प्रतिदिन इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। एक पहर निर्धारित कर देते हैं कि इस पहर उनको अध्ययन करना चाहिए। इतिहास के 6 अंग बता दिए गए हमारे यहाँ: पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिकाएं, उदाहरण, धर्मशास्त्र एंड पॉलिटी, अर्थशास्त्र। और इसमें इतने बड़े ज्ञान राशि को इसमें समाहित कर दिया गया जिसकी तुलना कहीं और से की ही नहीं जा सकती। इसीलिए जो ब्रैकेटेड डेफिनेशन लेके जब चलते थे तो उन्हें लगता था कि भारतीयों में तो इतिहास की चेतना ही नहीं थी, इतिहास की संकल्पना ही नहीं थी, क्योंकि उनके उस डेफिनेशन पे हमारी चीजें, और वो चाहते भी यही थे कि फिट ना आए, उनके उस डेफिनेशन पे हमारी चीजें फिट नहीं आती थी। भारत में इतिहास को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक और श्रेष्ठ स्थान दिया गया। भारत में बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही थी जहां कहा जा रहा था धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन्स, ड्यू टू स्ट्रगल्स, ड्यू टू जो विपरीत परिस्थितियां थी हमारी, उसके कारण दिस कंसेप्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट नैरोड डाउन, इट कंस्ट्रक्टेड। ये जो पूरी अवधारणा थी वो धीरे धीरे सिमटती चली गई, संकुचित होती चली गई। और जब हम ब्रिटिश दासता के शिकार हुए, ब्रिटिश से जब हमने लोहा लेना शुरू किया, उस 200 साल में वी लॉस्ट सेवरल थिंग्स। सबसे ज्यादा हमारे नॉलेज रूट्स पे, हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस पे, हमारे नॉलेज ट्रेडिशन पे जो प्रहार हुआ है वो ब्रिटिश काल में हुआ। उसमें इन डिस्टॉर्शंस को, इन विकृतियों को बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इनकलकेट किया गया, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इसको प्लान करके हमें बताया गया, हमें समझाया गया, और हमने उसको मानना शुरू कर दिया। हमने बहुत हद तक उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने तो यहां तक स्थापित करने का प्रयास किया, दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश दैट
हमारे अंदर कोई कॉन्सियसनेस ही नहीं थी इतिहास को लेके, इतिहास की चेतना ही नहीं थी। लेकिन भारतीय विद्वान उस समय भी लगातार इसको लेके काम करते रहे। हमारे यहां धर्म को एक केंद्रीय तत्व बनाया गया, केंद्रीय तत्व के रूप में महत्व दिया गया धर्म को। धारेते इति धर्म की संकल्पना आई। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक कंप्लीट जो 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 कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक आचार संहिता है, उसके रूप में धर्म को अपने यहां स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया। इसलिए ब्रिटिशर्स को यह समझ में नहीं आया और उन्होंने तो यह मन बना लिया था कि भारत को जब तक वो हमारी जड़ों से हमको नहीं काटेंगे, हमारे कल्चरल रूट्स पे, हमारे नॉलेज ट्रेडिशन पे जब तक वो प्रहार नहीं करेंगे, बहुत लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी सारी स्ट्रेटजी इसी आधार पर बनती चली गई कि कैसे हमारे कल्चरल रूट से काट को हमको अलग किया जाए। और मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने जो भी स्ट्रेटजी बनाई, उससे अभी तक उस ट्रैप से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैं अभी आता हूं कि कैसे, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि अभी तक, आज तक हम उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब हम उस जकड़न को तोड़ रहे हैं। पिछले 5, 7, 10, 20 वर्षों से बहुत तेजी से उस जकड़न को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर लाइक देयर कॉलोनी, एटलीस्ट देयर एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉलोनी। अभी उनका जो शैक्षिक और बौद्धिक उपनिवेश की तरह से ही हम काम कर रहे हैं। हम उनकी बहुत सारी बातों को एज इट इज अभी भी मानते हैं। मैं कुछ बातों को लेके चलता हूं, कुछ बिंदुओं की आपकी यात्रा कराता हूं रादर, कि कैसे कैसे उन्होंने डिस्टॉर्ट किया और हम क्या करें उसको ठीक करने के लिए। पूरी क्रोनोलॉजी को हमारे उन्होंने डिस्टार्ट किया। द ट्रायो ऑफ दिस विलियम जोन्स, H.H. Wilson and Max Muller, they tried their level best to just pull down our chronology till Greek. They wanted to match it with Greek chronology. At least Max Muller wanted this. At any cost, he wanted this to match our chronology with the Greek chronology. So they tried their level best to pull it down. उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसको खींच के इतना नीचे तक लाया जाए। उसी के पहले 1654 में, अगर मुझे ठीक से याद है तो 1654, आयरलैंड का एक आर्चबिशप था आशर, उसने घोषित कर दिया कि 22 अक्टूबर 4004 बीसीई को, अब से लगभग 6000 साल पहले, पूरी सृष्टि की रचना हुई। इसलिए उनके इंटेलेक्ट विंग ने यह पूरा प्रयास करना शुरू किया कि कैसे हम पूरी क्रोनोलॉजी को उसके अंदर ले आए। और दिस ट्रायो वर्क, at least in terms of Indian history, William Jones, H.H. Wilson and this Max Muller, they just equated Sandrocottus with Chandragupta Maurya. उन्होंने सैंड्रोकोट्टस को चंद्रगुप्त मौर्य से लाके मिला दिया, and that becomes, they decided that this is the sheet anchor of Indian chronology, Indian history, that Chandragupta Maurya or Mauryan period, or in other terms Sandrocottus, is the sheet anchor of Indian chronology. And ultimately it has been proved that it is not sheet anchor of Indian history, it is not sheet anchor of Indian chronology, rather it is sheet anchor of Indian chronology. क्योंकि उसके कारण पूरी क्रोनोलॉजी का जिस तरह से उन्होंने कबाड़ा किया है, जिस तरह से तहस नहस किया है, वो एक देखने की बात है। दूसरे और कहां उन्होंने तोड़ा है इसको, मैं अभी एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु लेते हुए बढ़ता हूं। दूसरे उन्होंने, they came with a very so-called very beautiful theory, that was white man's burden theory. They tried to establish that yes, we have been instructed by, directed by Almighty God, that we have to go in the entire world wherever there are cruel, barbaric and jungly people are there, and we have got the instruction or direction to civilize them. जहां जहां भी क्रूर, जंगली, बर्बर और असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हम वहां जाकर उनको सिविलाइज करेंगे।
और इसलिए चूंकि भारतीय, उन्होंने यही स्टैब्लिश किया कि चूंकि भारतीय जंगली हैं, असभ्य हैं, बर्बर हैं, उनको अपना शासन करने नहीं आता, इसलिए हम उनको सिविलाइज करने यहाँ आए हैं, हम उनको सिविलाइज करेंगे। यहां तक उन्होंने कहा कि भारत तो कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं है, इट वॉज नेवर ए नेशन, इट वॉज नेवर ए नेशन, एट लीस्ट इट इज सेट ऑफ 16 नेशनलिटीज। उनके इंटेलेक्ट विंग ने यह कहा कि कम से कम 16 राष्ट्रीयताओं का यह समूह है, कम से कम 16 राष्ट्रीयताओं का समूह है। This is the irony, and we accepted these bullshits. Pardon for my language. हमने इन बकवास बातों को हृदयंगम और आत्मसात करना शुरू किया। आप देखिए, जब वो अभी जंगली जीवन में, फिर दोहराता हूं एक बार, जब वो अभी जंगली जीवन बिता रहे थे, हमारे यहां वेद की ऋचाएं गूंज रही, जब उनके यहां नेशन स्टेट की कोई संकल्पना नहीं थी, जब ईसा का जन्म नहीं हुआ था, जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, जब मार्क्सवाद की कोई अवधारणा का अभी अस्तित्व नहीं बना था, उस समय हमारा अथर्ववेद एक पूरा पृथ्वी सूक्त लेके आता है, जिसको हम कहते हैं कि वो राष्ट्रीयता का जयगान है, जहां हम कहते हैं माता भूमि पृथ्व्याम पुत्रोहम, ये भूमि हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं। इस अवधारणा के साथ आते हैं, एंड दे वर एलिजिंग दैट वी आर सेट अप एटलीस्ट 16 नेशनलिटीज। वी नेवर मींस there was no nation, we have never been as nation in the entire history, they were releasing on us. वो भूल गए कि जिस परिभाषा को उन्होंने आके मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न टाइम्स में स्थापित किया है, वो परिभाषा हमारा विष्णु पुराण एकदम उसी तरह से एस्टैब्लिश कर रहा है। जब हम कह रहे हैं उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि हिमालय के नीचे, हिमालय के दक्षिण और समुद्र के ऊपर उत्तर जो पूरा भूभाग है वो भारत है, और इसकी संततियां भारतीय हैं। आज भी जो नेशन की परिभाषा है, जो नेशन का डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट फीलिंग ऑफ वननेस। सो वी वेर टॉकिंग रिगार्डिंग वननेस इन विष्णु पुराण, एंड वी वेर एलिज दैट वी नेवर हैड बीन ए नेशन। ये जो प्रॉब्लम है, ये उनके द्वारा खड़ी की गई, और इस बैकग्राउंड पे उन्होंने इतनी जगह जो पूरी क्रोनोलॉजी स्टार्ट की। कम से कम ऐसे अभी बहुत सारे काम हमको करने हैं अगले कुछ दशकों में, अगले कुछ वर्षों में, जिससे हमारी हिस्ट्री की पूरी क्रोनोलॉजी ठीक, और क्रोनोलॉजी ठीक हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। क्रोनोलॉजी के साथ बहुत जबरदस्त छेड़छाड़ है, उस पर देश भर में बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, एंड दे आर एस्टैब्लिशिंग with their writings, with their publications, that the seat anchors should be Mahabharat war. If we have to do justice with Indian history and historiography, the seat anchor of Indian history and chronology should be Mahabharat war. So वास्तव में भारत में जो तिथियां हैं, डेट्स हैं, ईयर्स हैं, उसकी अपेक्षा हमने उन घटनाओं को, उनकी आख्यायिकाओं को, उनके प्रेरणास्पद प्रसंगों को, उससे हम क्या सीख रहे हैं उसको हमने ज्यादा महत्व दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि तिथि को लेके हमारी कोई सोच नहीं थी। कल्हड़ की राजतरंगिणी पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए आप, उस समय जिस समय की कल्हड़ की राजतरंगिणी है, उसने हिस्टोरियोग्राफी पे जो भी विचार दिया है, जो विचार प्रकट किया है, वो आज भी, उस समय तो पूरी दुनिया में आपको कहीं किसी पैरेलली किसी सिविलाइजेशन में, किसी देश में इस तरह की स्थिति नहीं मिलेगी, इस तरह की वैचारिकी नहीं मिलेगी। आज भी वो पूरे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके लिए इट इज वर्किंग लाइक गाइडलाइंस, इट इज लाइक गाइडलाइंस। आज भी वो गाइडलाइंस के रूप में काम कर सकती है या करती है। जब वो कहते हैं कि हमें जब इतिहास लेखन की ओर बढ़ना है तो हमें अपने पूर्व के इतिहासकारों का पूरा विवरण पता होना चाहिए। हमें बहुत स्पष्ट तरीके से कल्हड़ की राजतरंगिणी कहती है कि इतिहासकार को किसी भी तरीके के पक्षपात से और रागद्वेष से ऊपर होना चाहिए। द हिस्टोरियन मस्ट बी अनबायस्ड। इतिहास लेखन से पहले he should be aware of the past, and he should have the factual knowledge of the past,
उसे पूर्व काल की पूरी तथ्यात्मक ठीक जानकारी होनी चाहिए, उसे जानकारी जुटा लेनी चाहिए। फिर कहता है कि हमें परिस्थितियों और घटनाओं का, जो इतिहासकार है उसको परिस्थितियों और घटनाओं का सही एनालिसिस करना चाहिए। उसके अलावा वो कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होनी चाहिए, समग्रता से उसका विश्लेषण होना चाहिए, और इतिहास की समस्याओं को उसकी जो व्यापकता है और उसका जो विविडिटी है, जो वैविध्य है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको एनालाइज किया जाना चाहिए, और जो भी कंक्लूजन्स हम ड्रा करें उसका आधार इथिकल होना चाहिए, उसका आधार नैतिक होना चाहिए। अब अगर पाश्चात्य जगत के तत्कालीन क्या आज के भी इतिहास लेखन से जब आप इसकी तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको शायद निराशा हाथ लगे। बेसिकली Britishers put all their efforts to hammer the confidence of Indian people. उन्होंने वो सारा प्रयास किया कि हमारे स्वाभिमान को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारे आत्मविश्वास को वो तोड़ दें। और इसीलिए ये बेसिक रीजन था कि क्यों इतनी डिस्टॉर्शंस और क्यों इतने विस्मृतियां, हमें भुला दी गई चीजें, स्ट्रेटेजिक तरीके से विकृत की गई, विसंगत की गई और हमें भुला दी गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 7 दशक बाद भी अभी भी कमोबेश, अब हमने उस जकड़न को तोड़ना जरूर शुरू किया है, बट कमोबेश हम अभी भी शैक्षिक और बौद्धिक रूप से उनके उपनिवेश, उनकी कॉलोनी बने हुए हैं। मैंने एक आपको सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित एक विमर्श आपके साथ किया कि एक व्यक्ति को ये कहीं नींद में ख्याल आ जाता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो इस प्रकार से हुई है, और वो इसको एस्टैब्लिश करने का पूरा प्रयास करता है कि पहले क्या आया, और उसके बाद मैं यूनिसेलुलर से लेके होमो सैपियंस तक की जो यात्रा है वो हमें बता दी जाती है। आज जो जितने भी मॉडर्न सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्चेस हैं, they have established that there can't be any change in the species. कभी भी उद्विकास के क्रम में स्पीसीज का चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं हो सकता। इसलिए उनको मैं बहुत बधाई देता हूं ब्रिटिश इंटेलेक्ट्स को या वेस्टर्न इंटेलेक्ट्स को, कि वो मानते हैं कि वो बंदरों की संतान है, उनके पूर्वज बंदर हैं। हम लोग जो ऋग्वेद हमारा कहता है उस हिसाब से हम मानते हैं कि हम ऋषिपुत्र हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम देवपुत्र हैं। क्योंकि एक पूरी अमैथुनीय मानव का जन्म कैसे हो सकता है, इसकी पूरी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। इसलिए हम ऋषिपुत्र हैं, ऐसा हम मानते हैं। यहां से जब हम चलेंगे, और आप एक बार देखिए कि हमारे यहां भी जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, कुर्मावतार, बाराहावतार से लेके जो एक कम सिविलाइज्ड मानव के रूप में परशुराम और हाईली सिविलाइज्ड के रूप में राम तक की जो यात्रा है, वो जो पूरा सीक्वेंस है वो सही इवोल्यूशन की थ्योरी हमें बताता है। इसके बाद उन्होंने दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश द AIT, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हाउ दे जस्ट एस्टैब्लिश दीज थिंग्स और हाउ दे इनकलकेटेड दीज थिंग्स, ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम तो इसीलिए आए हैं ना यहाँ, ब्रिटिशर्स तो इसीलिए आए हैं क्योंकि आप तो अपना शासन करना जानते ही नहीं। आपके यहाँ शक आए, हूण आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुस्लिम आए, अफगान आए, और इसीलिए पहले आर्य आए, और इसीलिए हम आए हैं। हमारे यहाँ लोग आए, लेकिन वो सभी इस हमारी संस्कृति के महाउदर में समाहित होकर समाप्त हो गए, उसी में विलीन हो गए। आर्य हमारे यहाँ नहीं आए, आर्य यहां से बाहर गए। आज जितने भी हमारे रिसर्चेस हैं, अभी भी दुर्भाग्य है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। कम से कम ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में गति बहुत धीमी होती है। एक बात मैं और आपको बताऊं, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में डॉक्टर सुभाजीत जी को बेहतर इस बात का एहसास होगा, क्योंकि वो IIT के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 150 साल में जो रिसर्चेस हुए थे, जो थ्योरीज प्रोपाइंड की गई थी, पिछले 25-30 साल में उसमें से 2/3 से अधिक थ्योरीज समाप्त हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। जब नए रिसर्चेज आए तो ऑब्सोलीट हो गई। हमारे साथ समस्या क्या है? मोर देन 2/3 आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम उन चीजों को बहुत
लंबे समय तक खींचते हैं या ढोते हैं। और इसीलिए बहुत नए रिसर्चेस आने के बाद भी, पूरी तरह से सिद्ध होने के बाद भी कि ये थ्योरीज बकवास हैं, हम उसको अभी तक ठीक से अपने बुक से निकाल नहीं पा रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तकों से निकाल नहीं पा रहे हैं, या जिन शिक्षकों के मानस में उसने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं वहां से वो निकाला नहीं जा रहा है। लेकिन ठीक है, आने वाली पीढ़ी नए तेवर के साथ आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब लिंग्विस्टिक सोर्सेस के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर, लिटरेरी सोर्सेस के आधार पर, साइंटिफिक सोर्सेस के आधार पर वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। राखीगढ़ी के एक्सकैवेशन के बाद अब कोई संशय नहीं बचा है, और एक नई थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, दैट इज origin in India theory. And what they called that they came with white man's burden theory. It was really it was white man's blunder theory. It was not white man's burden, it was white man's blunder. तो इस चीज को अब समझना पड़ेगा। इसके बाद आइए जो सिंधु, जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो उसको हमने अब बहुत नए रिसर्चेस ने, सरस्वती नदी की खोज और उसके अनुसंधान के बाद जो 4 दशक का भारतीय इतिहास संकलन योजना का भी प्रयास था, और एस कल्याण रमन जी और पूरी टीम सरस्वती नदी बोर्ड ने जो उसकी पूरी उस पे काम किया, उस पे अनुसंधान किया, उसके बाद वो सैंधव सारस्वत सभ्यता का रूप, विकसित रूप हमारे सामने आ चुका है। उसका भी जो स्वरूप शुरू में उद्घाटित हुआ था, उससे बहुत विस्तृत और विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप हमारे सामने। ये विकृति अब हमको ठीक करनी चाहिए। फॉरेन इन्वेजन्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। जो विदेशी आक्रमण है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। किसी भी पुस्तक को उठा के देखिए, 1/3 से अधिक आपको शायद उसमें हिस्सा कम से कम एंशिएंट से लेके, और मेडाइवल तो पूरा वही है ही, वही हमें पढ़ाया ही गया कि कैसे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमें लूटा, हमारे ऊपर अपनी संस्कृति थोपी, वही हमें पढ़ाया गया, हमने वही सीखा, वही जाना। उस समय तो भारतीय गौरव से हम कोसों दूर हो गए। ये जो डिस्टॉर्शन है, विदेशी आक्रमणों को कम से कम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखिए, शायद 20-30% का हिस्सा अपनी टेक्स्ट बुक्स का उसी को समर्पित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही लिखा। इट वॉज रिटन विद द colonizers point of view. So the history of wars and the wars which they जिन युद्धों को उन्होंने जीता, जिनमें हम पराजित हुए, उनकी चर्चा उन्होंने की। शंकराचार्य की तिथि को लेके, वही मैं कह रहा था, क्रोनोलॉजी उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे पास ऐसे दर्जनों, केवल एक कैसे हम गोरे लोगों की बात आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, दर्जनों एविडेंसेस हैं हमारे पास। लेकिन मैकडोनल्ड नाम का एक व्यक्ति, जिसे संस्कृत कितनी आती है इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन उसने भारत के लिए द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन इंडिया लिखी, द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन इंडिया। और उस पुस्तक में उसने लिखा कि परहैप्स शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य was born in 788 AD in Kaladi, and we accepted this like anything. हमारे पास सुधन्वा चौहान का ताम्रपत्र है, जिसपे लिखा हुआ है शंकराचार्य की तिथि 2631 युधिष्ठिराब्द, जिसको जब हम जो मृत्यु और उनके देहावसान और उनके जन्म की जो तिथियां हैं, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 507 BC और 475 BC होती है। इसके अलावा जिनविजय का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, जिसमें स्पष्ट इसी तिथि का उल्लेख है। पुरी से और कांची से प्रकाशित पूरी उनका तिथिक्रम है। कांची ने 170 शंकराचार्यों की सूची प्रकाशित की है। 170 शंकराचार्यों को जब आप अभी 2500 वर्ष मनाया गया शंकराचार्य का, लेकिन हमने 788 ईस्वी स्वीकार कर लिया। इस पे हम रथलेस रिसर्च, इस पे हम ठीक से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। धम्म की संकल्पना के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ, and it was really an effort to just negate our entire सनातन ट्रेडिशन, जिनको हमने इतिहास में, इतिहास लेखन के बहुत महामानव की तरह से मान लिया। दिल्ली में बैठी हुई एक इतिहासकारा, जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, वो स्वीकार करती है मंचों से कि उनको संस्कृत नहीं आती, लेकिन प्राचीन भारत पे उन्होंने खूब लेखनी चलाई और उन्होंने लिखा कि धम्म अशोक की अपनी खोज थी। जब धम्म को आप कहती हैं अशोक की अपनी खोज थी, और अशोक खुद ही उस पे उसके जो शिलालेख है उसमें स्पष्टीकरण देता है कि मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पुरानी चीजों को ठीक से संकलित कर रहा हूं,
और उसे पीछे के हमारे शासकों ने उसे अपनी जनता में लागू करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। मैं उसे ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये प्रयास कर रहा हूं। तो ये बताने के बजाय कि पीछे के ट्रेडिशन से वो क्या ले रहा है, इट वॉज एन एफर्ट, स्ट्रेटेजिक एफर्ट रादर, टू निगेट अवर सनातन ट्रेडिशन। कि जिस धम्म को धर्म की पूरी संकल्पना से लिया जा रहा है, जहां पे वही बात की जा रही है जो सनातन परंपरा में है, कि हम चो धम्मे अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। ठीक वही चीजें जो धर्म के जो कोड ऑफ कंडक्ट में हम जिनको काउंट करते हैं, लेकिन हमें इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया गया, हमने बहुत ठीक से इसको आत्मसात किया कि धम्म उसकी अपनी खोज थी। और इस एक पंक्ति से, इस एक पंक्ति की जो मार है मैं आपको बताऊं, इससे पूरी सनातन परंपरा निगेट हो जाती है। ये जो विष भरा गया हमारे मस्तिष्क में, हमारी पीढ़ियों के मस्तिष्क में, इस डिस्टॉर्शन को ठीक करने का समय है। हमें कहा गया, एक धारा ने हमारी कहना शुरू किया कि गुप्त पीरियड वाज लाइक द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि उस समय जितने भी जीवन के आयाम हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो अपने कहीं ना कहीं बहुत उच्चतम शिखर पर हमको दिखाई देते हैं। सनातन अपने उच्चतम शिखर पे है। लेकिन दूसरे धारा इतिहासकारों की वो लिखती है कि वो हेडिंग ही डालती है, स्वर्ण युग की कपोल कल्पना, और कोई आधार नहीं देती अपनी बातचीत करने का। उन्हें जो मन में आता है, कोई रेफरेंस नहीं है उसमें। आप उठा के पढ़िए उन किताबों को, कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको। उनका मन किया, उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि नहीं साहब, ये तो स्वर्ण युग की कपोल कल्पना है, स्वर्ण युग जैसा कुछ होता ही नहीं। और ऐसे ऐसे तर्क जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो हम समझते हैं। कहते हैं कि वर्तमान हमेशा संघर्ष का काल होता है, हम स्वर्ण युग या तो अतीत में खोजते हैं या भविष्य में। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहां समस्या है। लेकिन हम जिन आधारों पर कह रहे हैं कि वो स्वर्ण युग है, उन आधारों को कैसे आप निगेट कर सकते हैं, उन आधारों को कैसे आप तोड़ सकते हैं। और तोड़ने का जो एक अनावश्यक प्रयास करते हैं, वो ठीक दिख जाता है कि पहले तय कर लिया जाता है कि उन्हें निष्कर्ष क्या निकालना है। उन्हें भारतीय संस्कृति में कुछ भी अच्छा नहीं देखना है। कुछ अच्छा गलती से भी दिख जाए तो उनको लगता है कि उनसे पाप हो गया। ये जो धारा है, जिसने इतिहास लेखन पर 7 दशक तक राज किया, और शायद ब्रिटिशर्स से भी खतरनाक तरीके से उन डिस्टॉर्शंस को उन्होंने देखा और दिखाया। आगे बढ़िए, मुस्लिम आक्रमण शुरू होते हैं इस देश में। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, बहुत ठीक से हमें बताया जाता है उसके बारे में। लेकिन दाहिर का प्रतिरोध कैसे वो रजिस्ट कर रहा है, वो हमें ठीक से नहीं बताया जाता। महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों की चर्चा की जाती है, खूब विस्तार से चर्चा की जाती है, कैसे उसने लूटा, कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया, बहुत ठीक से बताया जाता है। लेकिन त्रिभुवन पाल, अनंग पाल, गोगावीर का शौर्य, उनका जो वैल्यूर है, वो हमसे छुपाया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है। एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं जिसको लेके, श्रावस्ती का एक शासक है सुहेल देव, महमूद गजनवी का एक सिपह सालार है सैयद सालार मसूद गाजी, वो 1.5 लाख की सेना के साथ सुहेल देव पर आक्रमण करता है और पूरी सेना के साथ मारा जाता है। एक छोटा सा शासक, एक छोटी सी रियासत का शासक पूरी सेना को मार के खत्म कर देता है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। किसी दूसरे देश का इतिहास लेखन हुआ होता तो इस घटना को बहुत महत्व के साथ, शायद उस पीरियड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना के रूप में इतिहास की पुस्तकों में एस्टैब्लिश किया जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ये पूरी की पूरी घटना हमारे इतिहास की किताबों से गायब। और ये ऐसी घटना थी जब इसी पीरियड में दुनिया के करीब 23 देश इस्लामिक देश बन चुके थे। उन्होंने तलवार के बल पे उसको इस्लामिक देश बना लिया था। हमारे अगल बगल के बहुत सारे देश इस्लामिक देशों के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन 150 साल तक, 1033 की ये घटना है, और 1192 तक, 160 साल तक उनकी हिम्मत नहीं होती है कि फिर भारत की ओर आंख उठा के देख सके। लेकिन इतिहास की पुस्तकों से यह घटना गायब कर दी जाती है। जो पूरा हमारा हिस्टोरियोग्राफी है, उसमें सोशल हिस्ट्री का सही निरूपण नहीं हुआ। सही तरीके से सोशल हिस्ट्री नहीं बताई गई। कभी बताया भी गया तो किस तरीके से, कि यहां तो शूद्र थे साहब, और शूद्रों की हालत बहुत खराब थी। यहां आधी आबादी जो थी नारियों की,
वो बहुत खराब थी। अगर किसी पीरियड में खराब हुई भी तो उस खराब होने के पीछे वास्तव में कारण क्या थे? अगर फॉरेन इन्वेजन्स होंगे और स्त्रियों को घर के दायरे में रहना पड़ेगा तो उनकी स्थिति थोड़ी खराब होगी। लेकिन हमारी वैचारिकी ये थी क्या? हमारी मनीषा ये कहती थी क्या? हम तो उस धारा के लोग थे जहां स्त्रियों को आप उठा के देख लें, जहां मंत्र सृष्टा और मंत्र दृष्टा स्त्रियां थी। ऐसी 50 स्त्रियों के नाम मिलेंगे आपको ऋग्वेद में, घोषा, मुद्रा, पाला, विश्ववारा, काक्षीवती, जो मंत्रों की रचना कर रही हैं, जिन्हें उपनयन का अधिकार है, जो शिक्षिकाओं के रूप में काम कर रही हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। जब फॉरेन इन्वेजन हुए तो उनकी स्थिति में थोड़ा अंतर आया, लेकिन उसको इतना ओवर एम्फेसाइज करके और इतना विद्रूप करके हमारी पुस्तकों ने प्रस्तुत किया कि लगता है कि बहुत अन्याय हुआ है इस पूरे इतिहास लेखन के साथ। जो ही हम साइंस, टेक्नोलॉजी और में अपने कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, त्यों ही हमारे ऊपर एक लेवल चस्पा हो जाता है एक विशेष धारा का होने का। ये जो परिस्थिति है ये ठीक की जानी चाहिए। जबकि ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं उस समय का हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, एंशिएंट पीरियड का, जो मेटलर्जी के फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, आप एक एक उदाहरण लेके अगर केवल देखें तो समझ में आ जाएगा। हड़प्पा सिंधु सारस्वत सभ्यता में जिस तरह के सफाई की व्यवस्था है, जिस तरह से सड़कों की व्यवस्था है, ढकी हुई नालियों की व्यवस्था है, पूरे इतने बड़े क्षेत्र में, जब उस समय जाहिर है कि कम्युनिकेशन के साधन कितने सीमित थे इसका अंदाजा हम सबको है, लेकिन एक तरह के मेजरमेंट की प्रणाली आपको दिखाई देगी। ईंटों तक की माप एकदम 4:2:1 इसी स्केल पे पूरी सभ्यता में दिखाई देगा, इतने बड़े क्षेत्र में। ये कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन इस गौरव को हमारी पीढ़ियों से बहुत ठीक से छुपाया जाता है। मध्यकालीन जो मुस्लिम और दरबारी लेखक हैं, उनको भी जब हम प्राइमरी सोर्सेस के रूप में मान लेते हैं तो ये हम अपने साथ अत्याचार करते हैं। पर्शियन सोर्सेज जितने भी हैं वो एक तरफा और एक पक्षीय हैं। रीजनल सोर्सेज से रियल हिस्ट्री निकल के आएगी। तीसरे पूरा जो मेडाइवल पीरियड है उसमें हम दिल्ली सेंट्रिक इतिहास हमने पढ़ा। किसी विद्यार्थी से औरंगजेब के पिता का नाम पूछिए, वो वहां से लेके बाबर तक की यात्रा आपको तुरंत करा देगा। लेकिन उसी समय विजयनगर साम्राज्य की उपेक्षा हो रही, जो हमारे गौरव का मूल बन सकता है। अभी हमने तोड़ा है एलओसीएफ में, जब हिस्ट्री का क्यूरिकुलम हमने बनाया है, सौभाग्य से मुझे यह अवसर मिला कि पहला पेपर मेरा बनाया हुआ है जिसमें मैंने द आइडिया ऑफ भारत टाइटल से पेपर बनाया, और इसमें इस पूरी विकृति को ठीक करने का प्रयास किया। पूरे मेडाइवल पीरियड में जब हम केवल दिल्ली सेंट्रिक इतिहास पढ़ते हैं, हम विजयनगर साम्राज्य की उपेक्षा कर देते हैं। असम में अहोम साम्राज्य है जहां का केवल लक्षित बड़फुगन हमारी पूरी पीढ़ी में उस शौर्य को भरने का काम कर सकता है। उनके इतिहास को मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में कभी शामिल नहीं होने दिया। मालवा में विद्याधर हैं, कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीठ हैं, मेवाड़ का शौर्य हमसे अछूता रह जाता है। आज भी इस देश में प्रश्न उठाया जाता है, यहाँ पे अकबर महान हो जाता है और महाराणा प्रताप की महानता पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। यह बताया जाता है कि उनके पास तो सही स्ट्रेटजी नहीं थी। दिवेर युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका विवरण मैं कह रहा हूं कि फिर वही उसको बहुत विस्तार से हमारी पुस्तकों में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर आत्मगौरव भरने का काम करेगा। वो ऐसा युद्ध है जिसमें आज तक भारत का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, भारत क्या मुझे लगता है एशिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इतना बड़ा समर्पण नहीं होता है कहीं। 36,000 मुगल सैनिकों का समर्पण हुआ है उसमें महाराणा प्रताप, और इतिहास की पुस्तकें अभी भी झूठ लिखती हैं कि साहब अकबर तो कभी हारा ही नहीं, निर्णायक कोई हार किसी की नहीं हुई। ये बांग्लादेश का जो वार है उसके बाद दूसरा ऐसा युद्ध है जिसमें सबसे बड़ा समर्पण हमको दिखाई देता है। अकबर महान हो जाता है और महाराणा प्रताप की महानता प्रश्न चिन्ह में चली जाती है। उसी दिवेर के युद्ध में शेरमा सुल्तान को पानी पिलाने वाला जो महाराणा प्रताप है, उस मानवीय दृष्टिकोण के जो महाराणा प्रताप हैं, अकबर का बहुत नजदीकी रिश्तेदार है शेरमा सुल्तान, और वो मृत्यु के नजदीक है और पानी अपने हाथ से पिलाने का काम करने की मानवीय दृष्टि वाला, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और चित्तौड़ किले में 30,000 लोगों का
निर्दोष स्त्रियों का, निर्दोष बच्चों का नरसंहार करने वाला अकबर इस देश में महान हो जाता। ये जो डिस्टॉर्टेड आइडियाज हैं, बहुत विपुल मात्रा में हमारे यहां एक समस्या यह भी रही कि पांडुलिपियां और दस्तावेज जलाए गए। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जब किला समझकर आक्रमण कर देता है, खैर इसके कई सारे वर्जन्स मिलते हैं कि उसका नालंदा पे आक्रमण क्यों होता है, और नालंदा में जो धर्मगंज है, जो पुस्तकालय है, वो जला देता है, तो बहुत सारी पांडुलिपियां हमारी चली जाती हैं। एक बहुत अच्छा मुझे एक प्रसंग मिला उसके बारे में पढ़ने का, कि उसके बहुत सारे सिपहसालार उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, इसको जलाने का आदेश मत दीजिए, इसे हम अपने देश ले चलते हैं, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि भारतीय अपने ज्ञान परंपरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या है। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है नहीं, इसमें आग लगा दो, क्योंकि या तो इसमें वही सारी बातें होंगी जो कुरान शरीफ में है, क्योंकि कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, या तो उसमें उन्हीं बातों को रिपीट किया गया होगा जो कुरान शरीफ में है, तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर इसमें उससे इतर कुछ बातें हैं तो वो हमारे लिए कुफ्र है, इसलिए इसमें आग लगा दो। और धर्मगंज को, नालंदा विश्वविद्यालय के उस पुस्तकालय को जला दिया जाता है। ये जो पूरा डिस्टॉर्टेड मेडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसको ठीक किए जाने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद आइए आधुनिक इतिहास लेखन में, मैं केवल ये बात करते हुए अपनी बात को पूरी करने की ओर चला जाऊंगा, शायद समय भी पूरा होने की ओर अग्रसर है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास का सही मूल्यांकन नहीं किया, एक धारा को ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया। ये ऐसी लड़ाई थी हमारी, इस तरह का रेजिस्टेंस है, जहां जब समस्या हो रही है, भारतीय पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ प्रतिरोध कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जब समस्या हो रही है, 1740 में डच को मार्तंड वर्मा हराते हैं, और जो यूरोपियंस की पूरे इस क्षेत्र में अपराजयता की स्थिति बन रही थी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं मार्तंड वर्मा 1740 में केरल में डच को जब पराजित करते हैं। 1885 में कांग्रेस बनती है, उसके बाद 1915 में आके महात्मा गांधी जी उसका सारा कार्यभार संभाल लेते हैं। हमारा पूरा जो इतिहास लेखन हुआ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का, वो कहीं ना कहीं उसी तक सिमट के रह गया। ओवर एम्फेसाइज कर दिया हमने उस धारा को। मैं किसी धारा को अंडरमाइन नहीं करता, गांधी जी के नेतृत्व में जो धारा चली, जो लड़ाई लड़ी गई, निश्चित रूप से उसका बहुत अत्यधिक महत्व है, बहुत साइकोमोरल बेसिस हैं उसके। भारत के लोगों की जन जन की मानसिकता को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, और 3 स्तरों पर जो वो पूरा मूवमेंट लेके आए, जिसे हम असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया, इसके जब हम मनोवैज्ञानिक आधारों को देखते हैं तो ये लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि बाकी धाराओं को हम जिस तरह का उनको इतिहास लेखन में स्थान और सम्मान मिलना चाहिए था, वो ना मिले। जिन बातों से हमारे पीढ़ियों को गौरवान्वित होना चाहिए था, वो हमसे, वो पूरी वैचारिकी, वो पूरी परंपरा, वो पूरा ज्ञान से हमको वंचित कर दिया जाए, ये उचित नहीं था। ये नैरेटिव गढ़ा गया इस देश में, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। जिस आजादी के लिए हजारों हजार युवा अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, अपनी आत्माहुति दे रहे थे, बलिदान दे रहे थे, उसके लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया इस देश में। उस समय दसियों धाराएं आंदोलित थी, और एक एक धारा पे आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह का शौर्य हम प्रदर्शित कर रहे थे, किस तरह का प्रतिरोध भारतीयों के मन में था। अपदस्थ शासकों के आश्रितों का आंदोलन चल रहा था, मजदूरों का आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, आदिवासियों का आंदोलन चल रहा था, वनवासियों का आंदोलन चल रहा था, और एक से एक शौर्य के किस्से हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो धारा चल रही थी, हजारों हजार बलिदानी युवा अपना सब कुछ समर्पित कर देने के लिए निकल पड़े थे। जब भगत सिंह से उनके भाई जाते हैं जेल में मिलने और उनसे कहते हैं कि केवल एक काम करो, एक पत्र लिख के हमें दे दो कि तुम माफी चाहते हो ब्रिटिश राज से, मेरी बात हो गई है, तुम्हें ब्रिटिश सत्ता से माफी मिल जाएगी। और अगले दिन जब वो पत्र मोड़कर अपने भाई को देते हैं और भाई पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक शेर से उन्होंने पत्र शुरू किया था। भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नया तर्जे जफा क्या है।
उन्हें यह फिक्र है हरदम की नया तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा मीन्स वे टू टार्चर, टार्चर के नए नए तरीके क्या हैं, और हमें यह शौक की देखें सितम की इंतहा क्या। मैं देखना चाहता हूं कि कितना जुल्म वो कर सकते हैं, मैं अपनी मातृभूमि को आजाद करके रहूंगा। ये धारा जो चल रही थी इसको अंडरमाइन किया गया। इसके अलावा जो पूरी नेशनल जो कल्चरल नेशनलिज्म की धारा चल रही थी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा चल रही थी, जिसकी जड़ें हमको दिखाई देती हैं जाके उसी मेडाइवल पीरियड में, जब मुगल आते हैं इस देश में, तो जिस पूरे देश में जिस तरह से भक्ति आंदोलन चल रहा है, एक इगैलिटेरियन मूवमेंट, एक समता मूलक आंदोलन चल रहा है, और देश के चारों हिस्सों में, पहले मैं इसको अभी रिलेट करता था 1870 से लेके उठाता था, लेकिन अब लग रहा है कि उसकी जो पूरी जड़ें हैं कम से कम इस पूरे आंदोलन के समय में, वो पीछे से चली आ रही हैं, 16वीं 15वीं शताब्दी से चली आ रही है। जब एक एक उदाहरण आप उठा के देखें, उत्तर से गुरु नानक देव इस राष्ट्र की जो ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ, समता मूलक आंदोलन की बात करने के साथ साथ, इस राष्ट्र की आराधना भी ईश्वर की तरीके से वो कर रहे हैं। पूर्व में चले जाएं, असम में ही शंकर देव इस राष्ट्र की आराधना करते हैं। पश्चिम में नरसिंह मेहता गुजरात में, वो कहते हैं धन्य धन्य भारतवर्षे गोविंद ते गुण गायो रे, भारतवर्ष को धन्य धन्य कह रहे हैं। और दक्षिण में सुदूर केरल में बैठे हुए पंतानु, ये 15वीं 16वीं शताब्दी की सारी घटनाएं हैं, जब वो कहते हैं कि वी ऑल शुड रिमेंबर दैट भारत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सबको याद रखना पड़ेगा कि भारत ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इस पृष्ठभूमि में जब हम अपनी पूरी, जब ब्रिटिशर्स के साथ हमारा कम से कम 1857 के महासमर के बाद जब हम अपनी अंतिम लड़ाई में जाते हैं, तो पूरी जो वैचारिक खाद पानी इस पूरे आंदोलन को मिल रही है, आंदोलन की सभी धाराओं को मिल रही है, ऐसी जो हमारी कल्चरल नेशनलिज्म की धारा है वो भी इसी के साथ आती है। जब बंकिम वंदे मातरम लिखते हैं, तुम्हें दुर्गा दस प्रहरण धारिणी, जब मातृभूमि को वो पूरी तरह से मां दुर्गा के साथ समीकृत कर देते हैं, जब धर्म और राष्ट्र मिलकर एक प्राण होते जा रहे हैं, एकाकार होते जा रहे हैं, ये हमारे इतिहास लेखन का कहीं हिस्सा नहीं बनता है। जब स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि मैं ये देखता हूं कि मां भारती और मां जगदंबा में कोई अंतर नहीं है, दोनों की सेवा में कोई अंतर नहीं है, इसी पृष्ठभूमि को लेते हुए सावरकर जब इस पूरी वैचारिकी को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये जो स्थितियां हैं, तिलक जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इनको मेन स्ट्रीम है उससे काटकर इनको हाशिए पर कर दिया जाता है इतिहास लेखन के। इसको ठीक करने की जरूरत है। ये जब हम ठीक करने की ओर जा पाएंगे, जो देश भर में बहुत सारे अल्पज्ञात नायक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अभी उस पर भी काम पूरे देश में शुरू हो चुका है। जो ऐसी घटनाएं हैं, उनसे जुड़े स्थल हैं, जो साहित्य प्रतिबंधित हुआ, जो ऐसी संस्थाएं, गुप्त संस्थाएं काम कर रही थी। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, जब वो कलकत्ता में थे और गीता की पहली प्रति वो प्रकाशित करते हैं, तो आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जान के कि उस पे भगवान कृष्ण का चित्र नहीं बनाते, उस पे किसी देवी देवता का चित्र अंकित नहीं करते, उस पे खड्गधारिणी मां भारती का चित्र अंकित करते। जो ये राष्ट्रभाव पनप रहा था, जो ये पूरे देश में एक चेतना पनप रही थी, जब हमारा धर्म और राष्ट्र एक प्राण हुआ जा रहा था, इस पूरी वैचारिकी को, इन पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे शौर्य को, इस पूरे चिंतन को, इस पूरे ज्ञान को काटकर इतिहास लेखन से अलग करने का प्रयास कर दिए। इसलिए समाधान का पक्ष क्या है? एक शताब्दी पहले अब हमें इन सारे डिस्टॉर्शंस को दूर करते हुए भारतीय चेतना के प्रकाश में भारत के इतिहास में भारत ही नहीं, ये अब हमको ध्यान देना होगा। स्वामी विवेकानंद एक शताब्दी पहले, ओवर ए सेंचुरी एगो, ही रोट इन इंडियन हिस्ट्री इन इट्स पर्सपेक्टिव्स, वो लिखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री रिटन बाय इंग्लिश एंड अदर वेस्टर्न राइटर्स कैन नॉट बट बी वीकनिंग टू आवर माइंड्स, फॉर दे टॉक ओनली ऑफ आवर डाउनफॉल। वो केवल हमारे पतन की बात करते हैं। आगे वो लिखते हैं, नेवरदलेस दे हैव शोन अस how to proceed making researches into our history. Now it is for us to strike out an independent path of historical research for ourselves, to study the Vedas and Puranas and the ancient annals of India, and from them make it your own life sadhana
to write accurate and soul-inspiring history of the land. It is for Indians to write Indian history. I'm again underlining, it is for Indians to write Indian history. ये स्वामी विवेकानंद एक शताब्दी पहले उद्घोष करते हैं। भगिनी निवेदिता फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखती हैं कि भारत के सामने सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है कि भारतीय अपने स्वयं के इतिहास का पुनर्लेखन करें, और वह भी आधुनिक नियमों के अनुसार करें, जो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से। दूसरे शब्दों में वो लिखती हैं कि भारतीय अध्ययनशील व्यक्तियों के समूह द्वारा यह होगा। आनंद कुमार स्वामी लिखते हैं कि अपने ही इतिहास से छेड़छाड़ और थोपा हुआ इतिहास हम कब तक पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी तक यहां तक कहते हैं कि भारत में विकृत इतिहास हम पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत का छात्र मिडिल सेक्स काउंटी जानता है पर सौराष्ट्र और काठियावाड़ के बारे में नहीं जानता। वह मैनचेस्टर लिसेस्टर के बारे में जानता है, लेकिन गंगा यमुना के बारे में उसकी जानकारी बहुत अधूरी है। जर्मन विद्वान हैं विलियम वॉन पॉकहेमर, जिन जैसी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब आप इतिहास की किताबें उठाइए और देखिए कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी आक्रमणों का और ऐसे युद्धों की चर्चा है जिसमें हम पराजित हुए हैं। इंडियाज रोड टू नेशनहुड, ये एक पुस्तक लिखते हैं और लिखते हैं उसमें कि जब मैं भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो लगता ही नहीं कि मैं भारत का इतिहास पढ़ रहा हूं, बल्कि ये लगता है कि केवल पराजय, पतन और अपमान का इतिहास है। ये जो स्थिति है ये बदलनी चाहिए। हम मार्क्स और वेबर के चश्मे से कब तक अपने देश को देखते रहेंगे? मार्क्स कभी भारत नहीं आता है, लेकिन उसने 2 लेख लिखे वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में उसके 2 लेख छपते हैं, जिसमें वो ये एस्टैब्लिश करता है, वो लिखता है कि इंडिया इज ए पेक्यूलियर कंट्री, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सोसाइटी बिकॉज दे आर वर्शिपिंग काउज एंड मंकीज। इसी तरह से मैक्स वेबर कभी भारत नहीं आता है, लेकिन भारत में खूब लिखता है। वो लिखता है कि 2 सोसाइटीज कैन नेवर कम अप, that is India and China, because they believe in karma and rebirth. And this was the reason that whenever Swami Vivekanand delivered his lecture in Western world, it is 79 times on the record that after just delivering his lecture, he had said one line that fine, I had told you these things, but I would say one more thing, that you Westerners will never understand this. आप पाश्चात्य लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जीते नहीं है इसको, आप इसको समझने का प्रयास भी नहीं करते। आप सुनते ही इसके मर्म को, यू कैनॉट जस्ट रीच टू अवर इनर कॉन्साइंस। आप हमारी अंतरात्मा तक, हमारी चेतना तक, हमारे संस्कृति के मूल तत्वों तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए भारतीयों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। हमने उस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में काम करना शुरू कर दिया है। हम निश्चित रूप से इन विकृतियों को दूर करके पूरे भारत का समग्र इतिहास, समग्र रूप में जो सत्यपरक होगा, जो प्रामाणिक होगा, जो वास्तव में तथ्यों के आधार पर होगा, जो वास्तव में भारत की चेतना के अनुरूप होगा, पूरी तरह से भारतीय होगा, ऐसा इतिहास लेखन हम कर सकेंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हम उस पर बढ़ चले हैं। आप सबकी आहुति उसमें पड़ती रहेगी। ऐसे इसमें लोग जुड़ते रहेंगे और इस लक्ष्य की ओर हम पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कभी पूरा होने वाला लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम लगातार उस क्षितिज की यात्रा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार। Now I would like to request the participants and guests over here, if you have any questions, you can raise question. किसी का कोई जिज्ञासा है डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से, वो आगे बढ़ सकते। नहीं तो मैं डॉक्टर अंकिता दत्त जी को बोलूंगा, वो ये जो व्याख्यान आपने रखा उसके बारे में 5 मिनट में हिंदी, इंग्लिश और असमिया में करें। मैं डॉक्टर अंकिता दत्त जी को अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर, ओवर टू डॉक्टर अंकिता दत्त।
Thank you. Thank you so much, Dr. Omji Upadhyay ji, for that. It was a really academically enriching and fruitful session. बहुत ही अच्छा था. विसंततिया और भारतीय इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता হয় আমাক খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে আৰু ইতিহাসৰ কথা ক'লে আমি অকল আমাৰ মনলে যে মুঘল সাম্ৰাজ্য ইনভেশনস আৰু কিমান ওয়াৰ্স হৈছিলে অকল আমি হেবিলাকে আমাৰ মনলে আহে so ইয়াতে এখিনি কথা যে ভাৰতবৰ্ষ কি আছিলে যে India is not just a country which we can understand from 1947 so হেতু তেওঁ খুব ভালকে দাঙি ধৰিছে নিজৰ স্পিচত so and of course Dr. Omji Upadhyay, you are an erudite historian and it was really a privilege to have today amongst us in this platform and মই অকমান briefly অলপ summarize কৰি দিম গুটে কথাখিনি so प्रथमते তেওঁ এটা কথা কৈছে in the very beginning of his speech जो उन्होंने बताया कि जो the greatness of the Indian civilization and our culture भारतीय সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ যেটো এটা glorious past and which again reaffirmed our faith in the fact that the itihas of Bharat is not just about it is not just about colonizers or the colonized alone aru amar jitu gaurav amar সংস্কৃতি aru amar সভ্যতাৰ ওপৰত jitu gaurav hetu depend koribo amar itihas keneke পঢ়ুৱা হৈছে কোনটো পার্সপেক্টিভত কোনটো माने कौन सी दिशा में हम लोग को पढ़ाया गया है हमें अपना इतिहास and it's a fact that we have not been taught about the real itihasa of our country and he also explained us the reasons behind why we have not been taught and the ways in which we can correct it for our future generations amar ahi thoka projonmo hokolor karone ami bhul keneke sudharabo paru and itihas as emphasized by Dr. Upadhyay it is an unending dialogue between the past and the present what a lovely statement and it does not have an ending point hoy hosake hek nai aru it reaffirms our belief that jitu dominant eta baopanthi narrative ase amar history writing or it must be contested and questioned in order to rewrite history then Dr. Upadhyay also spoke about the jitu eta pasakto eta western academic framework jitu hoise mane which has largely determined the framework of history writing in India and in this context he focused on mainly three different aspects je western academia amar bharatiyo সংস্কৃতি সভ্যতাৰ কথা কি বুলি ভাবে what does it think about our the humans amar homaj and the ultimate end of life and here he very beautifully explained the difference that exists between western philosophy aru Indian philosophy je bharatiyo darshonor jitu concept amar rigvedot jitu kotha ase aru ihotor jitu abrahamic faiths or islam hok ba christianity hok tar ihotor jitu faith je we all are sinners boli jitu kotha ase so this is completely different from what we have in our Indian texts and so the concept of sin in the Abrahamic framework of thought in the western framework of thought was elaborated by Dr. Upadhyay aru yat teo bahut udaharon disile of bahut western thinkers or jene Machiavelli Thomas Hobbes ro udaharon disile je society jitu teo savage or eta mane হেৰি দিছিলে মানে এটা এক্সপ্লেনেশন দিছিলে হেতু কথাও তেওঁ এটো ভালকে তেওঁ দাঙি ধৰিছে তেওঁৰ স্পিচত aru the Bharatiya philosophy is all about sarve bhavantu sukhinaha so yate mur eta kotha monat pore je western philosophy je eta kotha ase je jontur gat soul nai mane animals do not have a soul hetu kotha koy kintu amar bharatiyo darshonot hetu kotha nai we see life in everything we see life in the small ant we see life in humans we see life in the snake আৰু হেতু কাৰণে যে ওয়েস্টার্নার্স বিলাকে আমাৰ সমাজখন বুজি পোৱা নাই যে তেওঁ যেটো কথা লাষ্টত হেখত তেওঁ কৈছে যে আমি ইয়াত গৰু পূজা কৰো আৰু আমি ইয়াত হাপকু পূজা কৰো সো এইবিলাক কথা তেওঁলোকে বুজি নাপায় বিকজ we see life in everything হে কাৰণে ইয়াত কনসেপ্ট অফ সিনৰ কথা যেটো তেওঁ কৈছে যে সিন we are sinners যেটো western framework আছে কিন্তু এটা ইন্ডিয়ান framework পাইতো completely এটা মানে এটা পৃথক বস্তু এটা completely opposite
আৰু কৌটিল্যৰ কথাও তেওঁ উদাহৰণ দিছে, ছন্দোগ্য উপনিষদৰ কথা খুব ভালকে উদাহৰণ দিছে, পুৰণ, ইতিবৃত্ত, উদাহৰণ, পলিটি, এইখিনি কথা খুব ভালকে কৈছে। আৰু ज्ञान which is associated with धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, और पर ये जो धारणा है ज्ञान और धर्म का जो इसका जो रिलेशन है, ये बहुत संकोचित होता चला गया आफ्टर द इस्लामिक इन्वेशंस। और बहुत सारे हमारे पुस्तक भी जो जला दिए गए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, ऐसा बोलते हैं कि मतलब 7 million books were burned continuously for 3 months in Nalanda University। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे मतलब हमारे वैल्यूएबल टेक्स्ट मतलब खत्म हो गए, जिसकी वजह से हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया। और मतलब ऐसा जो है ना, एक कल्चर को ही जो खत्म करने का प्रयास रहा है, तो जब एक कल्चर ही खत्म हो जाएगा, एक कल्चर जब टूट जाएगा, अ ब्रोकन कल्चर ऑलवेज प्रोवाइड्स अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन बाय द वेस्टर्न पैराडाइम। और जो एग्जैक्टली हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जैसे हमारी हिस्ट्री लिखी गई है JNU कबाल ऑफ हिस्टोरियंस ने, जिनको संस्कृत नहीं आती है, जैसे आपने बोला, सबको पता है, तो इसीलिए वो सब विसंगतियां आई है। एंड आवर नॉलेज ट्रेडिशंस वर फर्दर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स वेरी स्ट्रेटेजिकली, और जिसकी वजह से हम वी हैवंट बीन एबल टू शेड ऑफ आवर वेस्टर्न माइंडसेट। मैक्स मुएलर जैसे लोगों की भी एग्जांपल डॉक्टर उपाध्याय ने बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया है, कैसे उन लोगों ने हमारी हिस्टोरिकल जो क्रोनोलॉजी था उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया, और जैसे हमारे ही राजा और किंग्स को उन्होंने एक वेस्टर्न फ्रेमवर्क में कल्चरली अप्रोप्रिएट कर लिया, और जो अभी तक चल रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज के दौरान। And he also explained the theory of white man's burden to civilize the uncivilized, और ऐसे बहुत सारे ridiculous justifications जो colonizers ने दिया था हम लोगों को, मतलब भारत को colonize करने के लिए, कि Indians uncivilized थे, barbarics थे, ये ऐसा क्यों किया था? To legitimize their rule, to justify their rule। और जैसे India was never a nation, ये सब भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया। फिर उन्होंने जो विष्णु पुराण का जो एग्जाम्पल दिया, कि विष्णु पुराण में जो दिया गया है नेशन और राष्ट्र का मतलब कि नेशन क्या होता है ना, तो इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत हमको अच्छे से समझाया। और इसीलिए भी शायद हम लोग बोलते हैं कि जो मेरे मन में अभी जो एक बात आ रही है इस समय, कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंट्री विच वाज क्रिएटेड इन 1947, मतलब ये हमेशा से ही मतलब चलता आ रहा है। इट्स अ थॉट एक्चुअली, भारत एक सोच है ना। तो भारत को सिर्फ अगर हम एक टेरिटोरियल एंटिटी की तरह समझेंगे जो 1947 में पैदा हुआ, वो गलत है। और इसीलिए हमारा जो शीट एंकर होना चाहिए ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो हमारी महाभारत की युद्ध, कुरुक्षेत्र की युद्ध होना चाहिए। और इसीलिए क्रोनोलॉजी ठीक करना बहुत जरूरी है इस वक्त हमारे लिए। और इसमें उन्होंने एक जो खूब ভাল এটা উদাহরণ দিছিলে কালহান और राजा तरंगिणी, जो the concept of historiography in Kalhana's Raja Tarangini, which can still provide historians with a guideline or a fine blueprint on how to progress, on how to write history, that a historian must be unbiased of any ideological motivation, আৰু good মানে এটা ভাল factual knowledge থাকিব লাগিব অতীতৰ কথা, and with a comprehensive analysis. And because our self-confidence was destroyed by the British colonizers, and when that self-confidence is lost, whom does it benefit? It benefits the colonizer and the exploiter, और जिसकी वजह से इतनी हमारी इतिहास में distortion हुआ है। Then Dr. Upadhyay also enlightened us on the theory of evolution with reference to the Rig Veda, और कि जैसे वेस्टर्नर्स मानते हैं हम तो बंदरों से आए हैं, तो ये भी मतलब गलत है कि हम लोग बंदर वंश से आए हैं। मतलब तो ऐसा अगर बोलते हैं तो आज के जो मतलब जो बंदर बन के घूमते हैं वो इंसान क्यों नहीं बने? ये भी एक अपने में मतलब प्रश्न है। तो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन का है, ये भी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स प्रेमिस, इसके बारे में भी उन्होंने बात किया। और जैसे सबको पता है कि ये थ्योरी ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुका है, लिटरेरी बेसिस पे हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे हो, ऐसे बहुत सारे बेसिस पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी ऑलरेडी इट हैज बीन डिस्क्रेडिटेड। पर इसका जो एडवर्स इफेक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ द आर्यन द्रविडियन थ्योरी, वी सी दैट डिविजन बिटवीन जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया,
है ना, और पूरा जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने मतलब इसका जो फायदा उठाया है, वी नो अबाउट इट. सो and then he talked about the overwhelming importance given to foreign invasions and especially the wars that we lost, जिसके जो हम जीते उसके बारे में कभी नहीं बात किया गया है, हमको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन जो हम लोग हारे उसके बारे में पढ़ाया गया है, and which seriously needs correction. और शंकराचार्य के डेट ऑफ बर्थ का भी उन्होंने मतलब एग्जाम्पल देके he brought to light how our real history has been falsified by western historians and our colonial minds have come to accept this as the truth. और एक बहुत ज्यादा जो एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट रहा है to negate everything that is good in our civilization, to negate everything that is Sanatan, our true इतिहासा. So ये mindset दिखा जाता है, देखने को मिलता है हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में. And I mean the mindset to not see anything good in our ancient civilization. And और यहाँ पे जो उन्होंने सुहेल देव का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, थैंक यू डॉक्टर उपाध्याय फॉर दैट, जो सुहेल देव who fought against the barbaric invaders of Mahmud of Ghazni, और उनको अपना सबक सिखाने के लिए वो कि बहुत वर्षों तक भारत की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था उन्होंने. And this episode has been completely whitewashed from our history. And towards the last leg of his speech, he also spoke about the position that has been accorded to our women in our history textbooks. कि सही बात है, जिस देश में मातृशक्ति हम लोग मतलब कामाख्या माँ की पूजा करते हैं, खर्ची पूजा होता है, मतलब दुर्गा माँ की पूजा होती है, काली माँ की पूजा होती है, वहां पे एक ऐसा स्थिति तो कभी रहा नहीं होगा महिलाओं का. तो ये जो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स जो हमको दिखने में मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, ये सब कब हुआ, क्यों आया? जो अभी नॉर्थ इंडिया में भी जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे औरतें जो सर में पल्ला करती है, व्हेन आई वाज लिसनिंग आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. तो इसके पीछे भी एक कारण रहा है, लेकिन उसी नॉर्थ इंडिया से ही रानी लक्ष्मीबाई जैसे मतलब वीर महिलाएं भी मतलब पैदा हुई है. तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीजें हैं. दी ओवर एम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, ये सब हमको ठीक करना बहुत जरूरी है. और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स हुई थी एंशिएंट इंडिया में इन मेटलर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस हैज नॉट एट ऑल बीन टॉक्ड अबाउट इन आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, व्हिच आल्सो नीड्स टू बी करेक्टेड. और जो एक दिल्ली सेंट्रिक व्यू पॉइंट है कि যে আমাৰ মেডিভেল হিষ্ট্ৰী টেক্সট বুক বিলাকত অকল দিল্লী কথাই কৈ থাকে, দিল্লী কথা কৈ থাকিলে আমি খালি ঔৰংজেব, আকবৰৰ কথা আমাৰ মনত পৰে, যোনে আমাৰ মন্দিৰবিলাক ভাঙিছিলে আৰু who imposed jizya on Hindus. But at the same time, what about the Vijayanagar Empire, Raja Krishnadeva আৰু লাচিত বৰফুকন at the same time যেটো সাইমultaneous হৈ আছিল, তাৰ কথা আমি নেদেখো. ললিতাদিত্য অফ কাশ্মীৰ, সেইখিনি কথাও তেওঁ ভালকে আমাক বুজাই কৈছে. আৰু লাষ্টত তেওঁ ভক্তি আন্দোলনৰ কথাও কৈছে. যে ভক্তি আন্দোলন it was not just a movement, it was an entire way of life. और चाहे वो गुरु नानक हो नॉर्थ इंडिया में, एंड चैतन्य महाप्रभु इन बंगाल, शंकर देव इन असम, द इम्पोर्टेंस ऑफ भारत वर्षा इन देयर राइटिंग्स इज प्रोमिनेंटली विजिबल. और फिर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की जो इतिहास है उसमें भी उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने बात किया. उसका जो एक ओवरवेलमिंग एक जो गांधीयन पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली वी कैन नॉट ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी, बट देन इसको भी मतलब इसमें भी सोच विचार करना जरूरी है. हिस्ट्री चेंज करने के लिए वी हैव टू टॉक अबाउट आवर अनसंग हीरोज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली धर्म और राष्ट्र का कि इसमें की कोई डिफरेंस है नहीं. ये जो बंकिम चंद्र की चाहे राइटिंग्स हो, सावरकर जी के राइटिंग्स हो, स्वामी विवेकानंद का जो राइटिंग्स है, इसमें मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र है कि हमारा राष्ट्र नेशन से अलग है. नेशन एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने पहले ही बताया था अपने स्पीच में, और राष्ट्र एक हमारा एक इंडिजिनस कॉन्सेप्ट है, बिकॉज राष्ट्र इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन धर्म एज इट्स फाउंडेशन. और इसका एक पैरोकियल, एक नैरो मीनिंग नहीं है लाइक इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. वेस्टर्न में क्या है कि नेशन इज बेस्ड ऑन वन कॉमन रिलीजन, वन लैंग्वेज और एथनिसिटी और रेस. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं है. इट इज एन एटर्नल, एक इंटीग्रल, स्पिरिचुअल, एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है राष्ट्र, विच एकोमोडेट्स एवरीवन, नॉट जस्ट ह्यूमंस. सो एक ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है राष्ट्र का, जो सनातन राष्ट्र है. और जैसे एक हमारे वेदों में इसलिए बोला भी गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, मीनिंग जो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एनिमेट, इनएनिमेट, सारे जीव जंतु, जानवर, इंसान, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट सेम स्पिरिट जो चैतन्य है, मतलब सब उसी से पैदा हुए हैं.
तो धर्म और राष्ट्र में ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। और लास्टली उन्होंने जो बोला कि टू स्ट्राइक आउट एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ हिस्ट्री राइटिंग फॉर आवरसेल्व्स, अगर हमको अपने इतिहास के बारे में अगर हमको ठीक करना है, एक्यूरेट हिस्ट्री लिखना है, तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भारतवासियों को लेना होगा, हमारे ऊपर इंडियंस को लिखना होगा हमारी खुद की हिस्ट्री, जो कई बार भागिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद जैसे ऐसे महान पुरुषों ने भी बोला गया है, क्योंकि हमारी अपनी जो अंतरात्मा है, हमारी जो एक डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल एक ट्रेडिशन है, तो और हमारी जो अपनी संस्कृति सभ्यता, उसको सिर्फ हम समझ सकते हैं अच्छे से, वो कोई वेस्टर्नर इसमें नहीं समझ सकता है। और इसीलिए हमें अपनी इतिहास खुद लिखना बहुत जरूरी है। इट मस्ट बी अ कलेक्टिव एफर्ट एंड ओनली देन कैन द ओवरऑल जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क रहा है, द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ हिस्ट्री, देन कैन चेंज। बस यही था कुछ। अगर आई मे हैव मिस सम पॉइंट्स, सो आई वुड मतलब उसके लिए माफी मैं मांगूंगी। और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर अंकिता दत्त। আপুনি ধুনীয়াকে আমাৰ ডক্টৰ ওমজি উপাধ্যায় যিখিনি কথা কৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ যি ইতিহাস, এই ইতিহাস কেনেকে ডিস্টৰ্ট কৰা হৈছে আৰু কোন কোন ফেজত আমাৰ ডিস্টৰশ্যন হৈছে, আৰু আমাৰ মুনি ঋষি আৰু আমাৰ ইভলিউশন থিয়ৰি যিটো আছে, আমি কেনেকে আহিছো পৃথিৱীলৈ, আৰু সিহঁতে যিটো সপোনত দেখা থিয়ৰি, আৰু আমাৰ হল ৰিসার্চ ওরিয়েন্টেড ইনক্লুসিভ থিওরি, যেটো আমি সর্বভেবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া, এই যে আমি আমার এই ইউনিভার্সাল ইনক্লুসিভ থিওরির কথা আপুনি ধুনীয়াকে ক'লে, সেইকাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া আমি জাস্ট উই আর অ্যাপ্রোচিং টুয়ার্ডস দি এন্ড অফ দি সেশন, and prior to that our Dr. Nilanjan De will thank, but before that I would like to request Professor Dilip Kumar Phukon sir to speak 2-3 lines before to this. Professor Dilip Kumar Phukon sir. नमस्कार। आज भारतीय इतिहास संकलन समिति असम के तरफ से जो व्याख्यानमाला है, ये चतुर्थ व्याख्यानमाला है। हम 3 स्तर से एक व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर, पूर्वोत्तर भारत स्तर और आसाम स्तर। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय इतिहास का विसंगति और विकृतियों का परिशुद्ध रूप में आध्यात्मिक भावे पुनर्लिखन का आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में डॉक्टर ओमजी उपाध्याय ने विस्तृत वर्णना दिया। हमारा आस्था और विश्वास है और हम निवेदन करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसा विषय में हमको दिग्दर्शन करेगा। उपाध्याय को बहुत बहुत नमन। और एक ধন্যবাদ ফুকন স্যার। নাও আমি এতিয়া ডক্টর নীলাঞ্জন দে জি অনুরোধ কৰি আছো, তেখেতে যাতে আমার থ্যাঙ্কস দিয়ে আমার ডক্টর ওমজি উপাধ্যায় আৰু সবকে। ओवर टू डॉक्टर नीलांजन दे। नमस्कार। आज का इस व्याख्यानमाला का मध्यमणि परम आदरणीय ओमजी उपाध्याय, और आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस व्याख्यानमाला में वक्तव्य देने के लिए राजी हुए, इसलिए आपको भारत इतिहास संकलन समिति आसाम प्रांत की ओर से आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा इस प्रांत का आपको आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज का इस व्याख्यानमाला में उपस्थित हुए सभी विद्यार्थीजनों को भारतीय इतिहास संकलन समिति आसाम प्रांत की ओर से सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन मैं करता हूँ हमारा इस प्रांत का सभापति प्रोफेसर फुकन सर को, धन्यवाद हमारा अंकिता दीदी को, महर्षि जी को, और सर्वोपरि हमारी संगठन महासचिव सुभाष चौधरी जी को, क्योंकि उनके लिए ये इतना सुंदर कार्यक्रम हम फेसबुक लाइव और गूगल लाइव में भी हम कर रहे हैं, तो ये पूरा श्रेय जाती है हमारे सुभाष जी को।
और इसके लिए मेरी ओर से, फेसबुक की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुगण को, सहयोगी और सांबादिक बंधुगण को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, इन सभी को भारतीय इतिहास संकलन समिति आसाम प्रांत की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पुनः मैं सभी को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। नमस्ते। हाँ, नमस्कार। 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 সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম, সুন্দৰ, ভাল লাগিল। ভাল লাগিছে। ভাল লাগিল।